OLE, the utopian world of online education. Hello students, welcome to OLE. This is your biology class where we try and make biology interesting and understandable. So in the last segment of this chapter, we were discussing about the morphology of flowering plants, and we have already discussed about the stem as well as the root. Today we are going to go ahead and discuss about the morphology of the leaf. Okay, so before we go on and discuss about leaf, we are going to first write down as to what subtopics we are going to cover over here. So first of all, we are going to talk about the origin of the leaf, right? Then we are going to talk about the parts of the leaf. Alright, then we are going to talk about certain characteristics of the leaf, that rather the arrangement of leaves and the type of leaves, right? So we are going to talk about venation of leaves, the types of leaves. I'll tell you what it is based on. So there will be several types of leaves based on incision. I'll tell you later what it is. Then we are going to talk about phyllotaxy. Another unheard term, I know you must be wondering what it is. We'll get to that later. And then lastly, we are going to talk about the modifications of the leaf. Alright. Also, when we are talking about the parts of leaf, we are going to talk also about the function, which we have already discussed about the root and stem also, right? So we are going to talk about the functions as well. Okay, so let's begin with the origin of the leaves. Okay, so when we talk about the origin of the leaf, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि किस भाग से, प्लांट के किस भाग से लीफ निकलती है. So the plant part which gives rise to the leaf is called the node, and you already know that, right? Node basically वो part है जहाँ से सारी buds निकलती हैं and then they grow. जो leaf भी होती है वो भी एक type की rolled bud होती है, और उसके बाद वो जो leaves होती हैं वो flatten हो जाती हैं, laterally निकल आती हैं, protrude कर जाती हैं, and they extend themselves to the sun, right? तो node से इनका origin होता है. ओके ये दिखती कैसी हैं? लैटरली फ्लैटन स्ट्रक्चर्स की तरह दिखती हैं. और इनका ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर का मतलब कौन सी लीफ पहले उगेगी, फिर बाद में कौन सी उगेगी. तो देखो, एक्रोपिटल ऑर्डर, ये टर्म याद रखनी है. अब इस टर्म का मतलब क्या है? एक्रोपिटल का मतलब क्या है? सीधा सीधा मतलब ये है कि जब नई लीफ उगती है, राइट, एंड जब वो ओल्ड हो जाती है तो वो नीचे चली जाती है. उसके बाद जो लीफ उगती है वो उसके ऊपर उगती है. तो जो मैच्योर्ड लीफ होती हैं वो नीचे चलती चली जाती हैं. तो अगर तुम किसी लीफ की एक डंडी ले लो, राइट, एंड इट हैज सेवरल लीव्स, तो तुम देखोगे जो सबसे नीचे वाली लीफ होगी दैट विल बी मोर मैच्योर एंड अ साइज बिगर. ठीक है, बाकी की जो लीव्स होंगी as and when they are formed, right? तो as such size देखो तो छोटा होता जाएगा. राइट, एंड सबसे ऊपर तुम्हें मिलेगी एक छोटी रोल्ड टाइप की लीफ जो अभी एज सच फॉर्म ही हो रही है या खुल ही रही है. ठीक है, तो इसको कहते हैं एक्रोपिटल ऑर्डर. एक्रोपिटल ऑर्डर का सीधा सीधा मतलब है कि जैसे जैसे लीव्स मैच्योर होती जाएंगी वो नीचे होती जाएंगी और बाकी जो नई लीव्स उग रही हैं वो उसके ऊपर उगती जाएंगी.
सीधा सीधा ये मतलब है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट एक्रोपिटल ऑर्डर. ठीक है, अब आ जाते हैं लीफ के फंक्शन पे. पार्ट्स भी अभी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी. फंक्शन पे आ जाते हैं, क्योंकि तुम लोगों को पता है कि लीफ का फंक्शन क्या होता है, तुमने बहुत टाइम से ये पढ़ा हुआ है, बहुत सारे क्लासेस में पढ़ा हुआ है. सो बेसिकली लीव्स कंटेन क्लोरोफिल. राइट, एंड ये क्लोरोफिल होता है ग्रीन कलर का. राइट, यू ऑल्सो नो दैट, एंड दैट इज वाई द लीव्स आर ग्रीन इन कलर. And this chlorophyll, it helps to trap the sunlight, the photons of light, right, and subsequently carries out photosynthesis. Okay, now let's talk about the parts of the leaf. Okay, now see, there are three main parts which we are going to talk about, and then I am going to talk about certain other parts which are associated with the leaf. ठीक है, तो let's draw the part so that it becomes easier for you to understand. Okay, so this is the basic structure of the leaf. Now, like I said, there are three main parts. तो उनको पहले मार्क कर लेते हैं. So this is the leaf base. Leaf base का सीधा सीधा मतलब है it is the part wherein the leaf is originating. ठीक है, तो ये हो गया the part where leaf originated, that is the node, right? And उसी part को हम लोग बोल देंगे leaf base. ठीक है, जहां पे लीफ ओरिजिनेट की है. अच्छा, ये जो पार्ट दिख रहा है छोटा सा, दैट इज द एक्सिलरी बड. इट इज नॉट वन ऑफ द मेन पार्ट्स, बट इट इज द एक्सिलरी बड, जो कि हर लीफ के बेस पे तुमको उगती हुई दिखेगी. ठीक है, सो दिस इज द एक्सिलरी बड. अब यू मस्ट बी वंडरिंग कि एक्सिलरी बड यहाँ पे क्यों उगी हुई है, क्योंकि यहाँ पर तो एज सच कोई फूल उगता नहीं है. देखो क्या होता है ना, ये जो एक्सिलरी बड निकली है, इससे एक नई ब्रांच निकलती है. ठीक है, सो अगर ये लीफ है, इसका बेस है, यहाँ पे एक्सिलरी बड है, तो यहीं से एक दूसरी ब्रांच निकलेगी ऑफ द स्टेम. ठीक है, और ये जो दो छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स देख रहे हो, दीज आर लैटरल स्टिप्यूल्स. इनको बोलते हैं स्टिप्यूल्स. ठीक है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स से मिल जाएंगे, राइट? दो बेसिकली ये एक्सिलरी बड को कवर कर रहे होते हैं या उसके पास प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो ये तो हो गया अबाउट सर्टेन स्ट्रक्चर्स विच आर नॉट बेसिकली अ पार्ट ऑफ लीफ, बट
उससे एसोसिएटेड होते हैं। तो लीफ बेस इज वन पार्ट, ठीक है, जो हम लोगों ने मेन पार्ट्स की बात की थी। देन वी कम टू द अदर पार्ट विच इज दिस पार्ट, पीटियोल। पीटियोल का बेसिकली काम क्या है, ये जो लीफ का बेसिक स्ट्रक्चर है, लैटरल एक्सटेंडेड पार्ट है, लीफ ब्लेड है, उसको ये होल्ड करता है, ठीक है, उसको कनेक्ट करता है टू द स्टेम और द लीफ बेस, राइट, एंड इट ऑल्सो होल्ड्स इट सो दैट ये जो एक्सटेंडेड पार्ट है ये विंड में फ्लटर कर सके। फ्लटर करेगा तो क्या होगा, जब जो इसका टेम्परेचर होगा वो नॉमिनल होगा, मतलब ऑप्टिमम होगा। देखो प्लांट्स को ऑलमोस्ट हर टाइम सन चाहिए होता है, राइट, दे आर कॉन्स्टेंटली इन द सन, ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है कि लीफ का जो टेम्परेचर हो वो नॉमिनल हो, मतलब ऑप्टिमम हो। ये ना हो कि बिकॉज इट इज़ इन द सन इट इज़ एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो दैट इज़ वाई द लीफ इज एक्सटेंडेड ऑल्सो, right, and it can flutter in the wind so that its temperature is maintained, ठीक है। तीसरा जो मेन पार्ट आ जाता है, देखो मेन पार्ट्स को अंडरलाइन कर देते हैं ताकि तुम लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। सो लीफ बेस एक मेन पार्ट हो गया, पीटियोल हो गया, एंड दिस थर्ड मेन पार्ट विच इज कॉल्ड द लीफ ब्लेड, और इट इज ऑल्सो नोन एज लैमिना। देखो लैमिना तुम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, बेसिकली सरफेस टाइप का होता है लैमिना, राइट, तो ये भी तो एक सरफेस ही है, ठीक है, तो इसीलिए इसको भी लैमिना बोल दिया गया है, लीफ ब्लेड या फिर लैमिना। अब देखो हम लोगों ने बात कर ली लीफ बेस की, इट इज द पार्ट वेयर द लीफ इज अटैच्ड, ठीक है, या बेस फॉर्म कर रहा है। पीटियोल की बात कर ली, इट इज द पार्ट विच इज बेसिकली होल्डिंग द लैमिना to the wind या to the laterally extended part, and it is also attaching the leaf to the main stem, ठीक। अब आ जाते हैं लीफ बेस या लैमिना पे। अब देखो सबसे पहली बात तो इसमें खूब सारा क्लोरोफिल है, तो फोटोसिंथेसिस भी यहीं पे होगा, राइट, तो पहला तो ये फंक्शन हो गया। दूसरा ये जो तुम देख रहे हो ना बीच बीच में जो ड्रॉ किए हैं, कोई भी लीफ देखोगे अगर उसे बहुत गौर से ऑब्जर्व करोगे, यू विल फाइंड दीज लिटिल स्ट्रक्चर्स, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, दे आर रनिंग थ्रू द एंटायर लेंथ ऑफ द लीफ, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये होते हैं वेन्स एंड वेनलेट्स। जैसे हम लोगों की बॉडी में क्या है, बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज हैं, बहुत सारे ट्यूब्स हैं जिनमें से ब्लड फ्लो कर रहा है, वैसे ही प्लांट की बॉडी में ये वेन्स एंड वेनलेट्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो सबसे बड़ी वाली देख रहे हो बीच में जो बहुत प्रोमिनेंट है, और तुमको अगर तुम लीफ ऑब्जर्व करोगे तो सबसे बड़ी मोटी दिखेगी, दिस इज नोन एज द मिड रिब, ये होती है मेन वेन, ठीक है, मेन जो लीफ के बेसिकली बेस से ऊपर तक आ रही है, ठीक है। और दूसरी ये जो छोटी छोटी देख रहे हो, दीज आर नोन एज द वेनलेट्स। या simply you can say those which are associated with the midrib as secondary veins, ठीक है। अच्छा, अब इन midrib और वेनलेट्स का क्या काम है, देखो सबसे पहली बात तो लीफ में जो रिजिडिटी होती है, थोड़ी बहुत ही होती है लेकिन होती है, राइट, तो जब तुम इसको तोड़ते हो लीफ को, राइट, तो बेसिकली वो जो रिजिडिटी होती है जो जिसकी वजह से थोड़ा डिफिकल्ट होता है लीफ को तोड़ना, वो प्रोवाइड करता है मिडरिब एंड वेनलेट्स, ठीक। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि ये हमने कंपेयर किया टू द ब्लड कैपिलरीज, तो ब्लड कैपिलरीज का क्या काम है, टू मेक द ब्लड फ्लो इन आवर बॉडी, राइट, तो सिमिलरली इनका भी काम है कंडक्शन, कंडक्शन ऑफ व्हाट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो प्लांट को नीडेड होती हैं या प्लांट में बनती हैं, जैसे वाटर है, मिनरल्स है, ये सब रूट से लीफ तक पहुंचाना है, तो कहाँ से पहुंचाएंगे, थ्रू दीज वेन्स, ठीक। फूड तैयार किया है लीफ ने, इट हैज़ टू गो टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, राइट, तो कहाँ से उसका ट्रांसपोर्ट होगा, थ्रू दीज वेनलेट्स अगेन। सो दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ फूड मटीरियल्स, मिनरल्स, वाटर एक्सेट्रा थ्रू द प्लांट, थ्रू द लीव्स ऑफ द प्लांट। इज दिस क्लियर टू यू, ठीक है। तो अब जब हम लोग मेन पार्ट्स की बात करेंगे लीफ की, वो है लीफ बेस, पेटियोल एंड लीफ ब्लेड या लैमिना, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ों की बात करेंगे तो दीज आर एसोसिएटेड विद द मेन पार्ट्स, जैसे कि स्टिप्यूल्स, दो लैटरल से
लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं अराइजिंग फ्रॉम द लीफ बेस, दिस इज एक्चुअली द नोड. सो द लीफ बेस से एसोसिएटेड है द स्टिप्यूल्स एज वेल एज द एक्सिलरी बड विच इज फॉर्म्ड ऑन द बेस ऑफ द लीफ. ठीक है, एक्सिलरी बड किसको उगाएगी? द ब्रांच, द अदर ब्रांच ऑफ द स्टेम. ठीक है, फिर आते हैं लीफ ब्लेड या लैमिना पे. इसमें जो है वेन और वेनलेट्स हैं, द मेन मिडरिब एंड द secondary branches which are called as the veinlets. I hope this is clear to you. Now let's talk about certain other modifications which are found in these part of leaves. तो जब हम लोग पीटियोल की बात करते हैं या हम लोग लीफ बेस की बात करते हैं तो ये कुछ प्लांट्स में मॉडिफाई कर दिया जाता है. जैसे अब लीफ बेस की ही बात कर लो, लेग्यूमिनस प्लांट्स के बारे में सुना है, बीन्स वगैरह, राइट, प्रोटीन से रिच होती हैं, इनके नोड्यूल्स में बैक्टीरिया भी ग्रो करता है. यू हैव ऑल स्टडीड अबाउट दिस. ठीक है, तो उनका जो लीफ बेस होता है, लेग्यूमिनस प्लांट्स का जो लीफ बेस होता है वो थोड़ा स्वेल हो जाता है, एंड वंस इट स्वेल्स देन इट इज टर्म्ड एज पल्विनस. तो यहीं पे लिख लेंगे, पल्विनस इज द swollen base in leguminous plants. ठीक है, समझ में आया? अच्छा, मोनोकॉट्स के बारे में सुना है, जिन प्लांट्स में एक कॉटिलेडन होता है सीड में. उनमें क्या होता है, ये जो लीफ बेस होता है वो एक शीथ टाइप की बना लेता है और वो स्टेम को कवर करती है. तो जब भी तुम किसी ग्रास टाइप के जो जिनकी लीव्स जो थोड़ी लंबी होती हैं, ग्रास जैसी होती हैं, उन प्लांट्स को देखना, वो मोनोकॉट्स होते हैं. ठीक है, तो उनमें देखोगे कि ये जो लीफ बेस है वहाँ पे एक शीथ टाइप की बन रही है और वो स्टेम को या तो थोड़ा सा कवर कर रही है, पार्शली कवर कर रही है, या फिर कंप्लीटली भी कवर कर सकती है. ठीक है, तो दैट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द लीफ बेस. आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट ऑल दिस. ठीक है, तो हम लोगों के पार्ट्स हो गए, ओरिजिन हो गया, फंक्शन हो गया. अब आते हैं वेनेशन पे. ओके, नेक्स्ट वी कम टू लीफ वेनेशन. अब पहले ये टर्म समझ लो, वेनेशन का क्या मतलब होता है. बेसिकली इट इज द अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स इन द लैमिना ऑफ द लीफ. अभी हम लोगों ने वेन और वेनलेट्स की बात की थी, मिडरिप की बात की थी, एंड सब्सिक्वेंटली उसकी ब्रांचेस जो हैं वो वेनलेट्स हैं, तो उनकी बात करी थी. तो उनका जो अरेंजमेंट होता है उसी को हम लोग वेनेशन बोल देते हैं. अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स. अब देखो, अगर तुम लोगों ने लीव्स के अलग अलग टाइप को ऑब्जर्व किया होगा कभी, देखो अगर नहीं किया है तो अब कर लेना. अब जो मैं ये बता रही हूँ उसके हिसाब से तुमको एटलीस्ट 2 टाइप की लीव्स ढूंढनी ही है. तो देखो, वेनेशन जो है वो 2 टाइप का हो सकता है. इट कैन बी ईदर रेटिकुलेट और इट कैन बी पैरेलल. ठीक है, अच्छा, जो रेटिकुलेट टाइप का वेनेशन होता है, अभी जो मैंने लीफ बनाई थी ना, उसमें कैसे वेन्स बनाए थे, ऐसे, राइट. एक नेटवर्क टाइप का बना दिया था. इसी को बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन, जहां पे हम लोग देखते हैं कि वेन्स फॉर्म अ नेटवर्क. ओके, तो अब कैन यू गिव मी सम एग्जांपल्स ऑफ लीव्स व्हिच हैव दिस टाइप ऑफ नेटवर्क. देखो, अगर तुम लोगों के घर में प्लांट्स होंगे तो जनरली अगर तुम देखोगे तो बहुत सारे प्लांट्स में ऐसे ही टाइप का नेटवर्क दिखेगा. हाइबिस्किस में ऐसे ही टाइप का नेटवर्क दिखेगा. गुआवा का अगर लंबा सा ट्री है तुम्हारे यहाँ, उसकी लीव देख लो, उसमें बिल्कुल ऐसे ही दिखेगा. तो जो रेटिकुलेट वेनेशन होती है वो एक्चुअली डाइकॉट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. तो यहाँ पे लिख देते हैं, दिस इज जनरली प्रेजेंट इन डाइकॉट्स. ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं पैरेलल पे. पैरेलल नाम से ही पता चल रहा है, इसमें जो वेन्स होंगे वो पैरेलल होंगे एक दूसरे से, मतलब सेम डिस्टेंस पे होंगे. तो ये जनरली तुम्हें दिखेगा लंबी लीव्स में. जो लंबी लीव्स होंगी ना,
उसमें जो वेन्स हैं दे विल बी समवॉट लाइक दिस, right? So we can write here that the veins are parallel. और ऑब्वियस सी बात है ये जो स्ट्रक्चर है वो या पैरेलल जो वेन्स होंगे वो तुम्हें जनरली ऐसी लीव्स में दिखेगा जो लंबी होंगी, घास टाइप की होंगी, बड़ी घास जैसी होंगी, राइट? तो अगर मैं यहाँ पे तुमसे पैरेलल का एग्जाम्पल पूछूं तो सबसे पहले तो तुम बोल दोगे ग्रासेस, हाँ बिल्कुल सही है। और ये ग्रासेस जो होते हैं वो मोनोकॉट्स होते हैं, ठीक है। अब इफ यू स्टिल ऑब्जर्व एंड वंडर, तो तुमने वीट की लीव्स देखी होंगी, वो भी ऐसे ही होती हैं लंबी लंबी। लिली की देखी होंगी, ऐसे ही होती हैं लंबी लंबी। तो तुम अगर जो है बिना ये जाने कि कॉटिलेडन एक है कि दो है, तुम जान सकते हो कि लीफ मोनो या प्लांट मोनोकॉट है कि डाइकॉट है उसकी लीफ को देख के। अगर उसमें वेन्स जो होंगी वो ऐसा नेटवर्क फॉर्म कर रही होंगी तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये डाइकॉट प्लांट है। अगर उसकी जो लीव्स होंगी उनमें वेन्स ऐसे पैरेलल होंगी तो तुम्हें ऐसे ही पता चल जाना है कि वो मोनोकॉट है या ग्रास फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। तो तुम ऐसे भी लीव्स को देखकर पता कर सकते हो कि प्लांट डाइकॉट है कि मोनोकॉट। Is this clear to you? So arrangement of veins and veinlets, they can be of two types, reticulate and parallel. Reticulate is generally found in dicots and it is when veins form a network. Parallel जो होती हैं वो generally monocot में characteristic feature होता है जिसमें veins जो होती हैं एक दूसरे से parallel होती हैं, same distance पे होती हैं, एक दूसरे से मिलती हुई नहीं होती हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया? Okay, now we come to the types of leaf. ठीक है। अब यू मस्ट बी वंडरिंग, अभी वेनेशन पढ़ा था, रेटिकुलेट टाइप की लीफ हो गई, पैरेलल टाइप की लीफ हो गई, नहीं वो टाइप ऑफ लीफ नहीं है, वो हम लोग बात करते हैं वेनेशन मतलब वेन्स की। टाइप ऑफ वेन्स हो गया पैरेलल या फिर रेटिकुलेट वेन्स, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ टाइप्स ऑफ लीफ पे। टाइप्स ऑफ लीफ बेसिकली हम लोग डिवाइस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंसिजन। इंसिजन का सीधा सीधा मतलब है कट्स, ठीक है। अब देखो जो लीफ होती है वो कुछ ऐसी होती है, राइट? सिंपल लीफ ले लो, ठीक, ये लीफ हो गई। अब देखो कभी कभी लीफ में तुम देखते होगे इंसिजन्स होते हैं, कट्स होते हैं, ठीक है। जैसे ये लीफ है, हम लोगों ने इसमें छोटे छोटे इंसिजन्स मार्क कर देना है। ठीक है। अब देखो लीफ बिल्कुल स्ट्रेट थी, अब हम लोगों ने छोटे छोटे इंसिजन्स मार्क कर दिए, ठीक। अब यही इंसिजन्स अभी देखो ये मिड रिब तक पहुंच रहे हैं, ये इंसिजन्स देखो ये तुम्हारा मिड रिब है, ठीक है। ये इंसिजन्स मिड रिब तक नहीं पहुंच रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग इनको थोड़ा और बड़ा करते हैं। अब देख लो ये जो इंसिजन्स थे मिड रिब तक पहुंच गए, ठीक। अब हम लोग कह सकते हैं कि ये जो एक बड़ी वाली लीफ थी वो डिवाइड हो गई है छोटी छोटी लीव्स में, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो यही इसी तरीके से टाइप्स ऑफ लीव्स डिवाइस हुई हैं, ठीक है। तो जैसे पहली वाली लीफ बनाई थी बड़ी सी, दूसरी वाली लीफ बनाई थी जिसमें मिड रिब तक नहीं पहुंच रहे थे ये कट्स, उन टाइप की लीव्स को कहा जाता है सिंपल लीव्स।
ठीक है। और जब हम लोगों ने ये तीसरी टाइप की बनाई जिसमें इंसिजन्स जो हैं वो मिड रिब तक पहुंचने लगे, देन इट इज नोन एज अ कंपाउंड लीफ। ठीक है, तो दो टाइप की लीव्स हो गई, सिंपल लीव्स एंड कंपाउंड लीव्स। तो एक सिंपल सा डायग्राम बनाएंगे जिससे तुम्हें समझ में आ जाएगा सिंपल लीव्स क्या हैं। सो इस लीव में देयर इज नो इंसिजन। ठीक, ये दूसरी लीव बना लेते हैं। इसमें इंसिजन्स do not touch the midrib। तो ये दोनों तुम्हारी हो गई सिंपल लीव्स। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? सिंपल लीव्स में या तो कोई इंसिजन नहीं होगा, ठीक है, या फिर इंसिजन्स विल नॉट टच द मिडरिब। थोड़े बहुत इंसिजन्स हो सकते हैं इधर उधर, लेकिन दे विल नॉट रीच अप टिल द मिडरिब। ठीक, फिर आ जाते हैं कंपाउंड लीव्स पे। अब कंपाउंड लीव्स भी दो टाइप की हो सकती हैं। एक तो अभी जो मैंने तुम्हें बना के दिखाई थी, उसमें हम लोगों ने एक मिडल एक एक्सिस टाइप का ले लिया, ठीक है, और इधर उधर बन गई हैं छोटी छोटी लीव्स। हाँ, तो देखो इसमें जो है इंसिजन्स जो हैं वो मिडरिब तक पहुंच गए, राइट, एंड इट वाज डिवाइडेड इनटू सेवरल लीफलेट्स। और ये अटैच्ड है एक मेन एक्सिस से जो कि एक टाइप की सब ब्रांच हो गई, यू कैन से, एंड दिस एक्सिस इज टर्म्ड एज रैचेस। ठीक है, तो ये हो गई एक टाइप की कंपाउंड लीफ विच वी नॉर्मली सी इन विच प्लांट। ये बहुत कॉमनली तुमने देखा होगा नीम लीव्स में। नीम की जो पत्ती होती है उसमें बहुत सारी पत्तियां एक सिंगल एक्सिस से अटैच होती हैं। वो जो सिंगल एक्सिस होता है उसे हम लोग कहते हैं रैचेस, और वो जो छोटी छोटी लीव्स हैं वो एक्चुअली लीफलेट्स हैं। वो मेन लीफ नहीं है, वो बल्कि इंसिजन की वजह से मेन लीफ छोटी छोटी लीव्स में डिवाइडेड है, जिनको हम लोग बोल देते हैं लीफलेट्स। ठीक है, अच्छा, ये टाइप का जो कंपाउंड लीव्स होती हैं उनको कहते हैं पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स। यहाँ पे लिख लेते हैं, दीज आर कॉल्ड पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स। ठीक है, और एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं। अभी बताया तुम लोगों को नीम, समझ में आया? अब देखो एक और टाइप की कंपाउंड लीफ हो सकती है। ये देखो, ये भी तो एक टाइप की कंपाउंड लीफ ही हुई। एक लीफ थी, उसमें सेक्शंस हो गए उसके, सच दैट इट हैज फॉर्म्ड अ व्हर्ल ऑफ लीव्स। एक गोलाई में सारी लीव्स प्रेजेंट है। इसको कहते हैं पैल्मेटली कंपाउंड लीफ। ठीक है, अब इसमें देखो ये सारी जो लीफ हैं ये हो गई तुम्हारी लीफलेट्स, राइट, और ये जो इसका एक्सिस है वो एक्चुअली पीटियोल है जो कि तुम्हारी स्टेम में जुड़ा होएगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि एक लीफ थी और फिर इंसिजन्स हुए जिसकी वजह से वो इन 5 लीव्स में डिवाइड हो गई। एक नोड से एक लीफ निकल रही थी एंड वो इंसिजन्स होके डिवाइड हो गई 5 लीफ में। ऐसा हम लोग कंसिडर कर सकते हैं व्हेन वी आर कंसिडरिंग कि आखिर ये इंसिजन्स हुए कैसे। ठीक है, तो palmately compound leaf, it is generally found in silk cotton. So that is the example, right, and these are the two types of compound leaves.
आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट सिंपल लीव्स एंड कंपाउंड लीव्स। तो इनको हम लोग डिवाइड कर देते हैं ऑन द टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंसिजन, राइट। एंड क्विक रिकैप करते हैं, सिंपल लीव्स में देयर इज ईदर नो इंसिजन या फिर इंसिजन मिडरिप तक नहीं पहुंचता है, ठीक है। दूसरा कंपाउंड लीव्स में जो इंसिजन होता है वो मिडरिप तक पहुंच जाता है फॉर्मिंग लीफलेट्स। तो इसके भी दो टाइप्स हो सकते हैं, पिन्नेटली जिसमें एक रैचेस है, एसेंशियल एक्सिस है और उसमें सारे लीफलेट्स अटैच्ड हैं, या फिर पाल्मेटली हो सकता है पाम की तरह, जैसे पाम में 5 फिंगर्स अटैच्ड है ना, वैसे ही समझ लो एक एक्सिस है उससे 5 लीव्स अटैच हो गई हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं पाल्मेटली कंपाउंड लीफ, ठीक है, समझ में आ गया है। अच्छा, अब तुम लोग यू मस्ट बी वंडरिंग कि हम लोग बताएंगे कैसे कि ये पिन्नेटली कंपाउंड लीफ है कि नो इंसिजन वाली लीफ है। देखो, अब जैसे नो इंसिजन वाली लीफ है, इसकी भी तो ब्रांचेस होंगी, राइट, एंड उसमें से ये निकल रही होगी। तो जब तुम ऑब्जर्व करोगे तो तुमको पता ही नहीं चलेगा कि ये पिन्नेटली है कि सिंपल लीफ है। तो देखो, उसका मैं तरीका बता देती हूँ। हम लोगों ने बात करी थी ना एक्सिलरी बड की, ठीक है। तो यहाँ पे जब तुम एक्सिलरी बड ढूंढोगे तो तुम्हें वो एक्सिलरी बड यहाँ पे इन लीव्स के साथ साथ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये लीव्स है ही नहीं, लीफलेट्स हैं, इंसिजन के बाद बनी है। लेकिन यहाँ पे तुम जब एक्सिल पे इनकी एक्सिलरी बड ढूंढोगे तो सारी ही लीव्स पे एक्सिलरी बड प्रेजेंट होगा देयर, ठीक है। तो ये तरीका होता है डिफरेंशिएट करना बिटवीन सिंपल लीव्स एंड पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स, एक्सिलरी बड को देखना। अब तुम नीम देखोगे, ये तुम्हारा होमवर्क है, तुम नीम देखोगे और उसमें देखोगे किसी भी लीफ में क्या एक्सिलरी बड प्रेजेंट है, तो देखोगे नहीं है, ऑब्वियसली, क्योंकि वो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ है। और फिर तुम देखोगे और लीव्स जो ऐसे ब्रांचेस में लगी हुई हैं, किसी भी प्लांट की देख लेना, ठीक है, तो उसमें देखोगे कि सारी लीव्स में एक्सिलरी बड लगा हुआ है, ठीक। तो तुम्हें पता चल जाएगा कि वो सिंपल लीव्स हैं, ठीक। आप समझ में आ गया इन सब में डिफरेंसेस, ठीक, ये क्लियर है। नाउ वी कम टू द फाइलोटैक्सी। अच्छा, अब ये जो फाइलोटैक्सी है, ये टर्म का क्या मतलब होता है? देखो, फाइलोटैक्सी जो है, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स या लीफलेट्स ऑन द स्टेम एंड द ब्रांचेस, ठीक है। तो यहाँ पे वेनेशन की जब बात की थी तो वो वेन से समझ में आ रहा है ना, तो वेन्स की बेसिकली अरेंजमेंट थी। जब फाइलोटैक्सी की बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे अरेंजमेंट ऑफ लीव्स की। और लीव्स होंगी कहाँ पे अरेंज्ड? ऑन स्टेम्स एंड ब्रांचेस, ठीक है। तो हो गया फाइलोटैक्सी। अब फाइलोटैक्सी जो होता है वो 3 टाइप का हो सकता है, सो इट कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। कौन कौन से 3 टाइप्स हैं? देखो, एक हो गया ऑल्टरनेट, एक हो गया ऑपोजिट और एक हो गया वर्ल्ड, ठीक है। अब देखो, नाम से ही पता चल रहा है ऑल्टरनेट का क्या मतलब होता है। ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक लीफ अगर इधर है तो दूसरी लीफ होगी उसके ऑल्टरनेट साइड में, राइट। तीसरी लीफ होगी दूसरे के ऑल्टरनेट, चौथी लीफ होगी तीसरे के ऑल्टरनेट, पांचवी होगी चौथे के ऑल्टरनेट एंड सो ऑन, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें नोड्स की, ये हैं हमारे नोड्स, राइट। सो ओनली 1 लीफ इज ग्रोइंग पर नोड। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1 लीफ पर नोड। तो ये हो गया हमारा ऑल्टरनेट। क्यों? क्योंकि इसमें लीव्स तुम देख रहे हो ऑल्टरनेट, जैसे ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं ना, वैसे ही ऑल्टरनेट में लीव्स उग रही हैं। एक साइड पे
एक साइड पे एक नोड से एक लीफ तो दूसरे साइड पे दूसरे नोड से दूसरी लीफ, राइट। तो ये जो लीफ टाइप्स हैं वो हम लोग देखते हैं चाइना रोज में देख लेते हैं, मस्टर्ड में भी मिलती है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल भी लिख लेंगे यहाँ पे, चाइना रोज में, ठीक है, या फिर मस्टर्ड प्लांट में। ओके, देन वी कम टू ऑपोजिट। नाउ यू कैन गेस ऑपोजिट। इसमें क्या होगा, ऑपोजिट में दोनों लीव्स होंगी, ठीक है। तो मतलब एक लीफ अगर इधर है तो दूसरी लीफ इसी के ऑपोजिट, अगेन एक लीफ इधर, दूसरी इसके ऑपोजिट, एंड सो ऑन, ठीक है। तो यानी कि अगर हम लोग नोड मार्क करें तो एक नोड से कितनी लीव्स निकल रही हैं, 2 निकल रही हैं। सो वी कैन राइट हियर 2 लीव्स पर नोड, राइट, इजी है। अब ये हम लोग कहाँ पे पा सकते हैं, देखो गुआवा देखा है ना तुमने, अमरूद खाया होगा। अगर उसमें कभी भी तुम्हारी जो स्टेम होती है उसकी छोटी सी, उसमें अगर कभी भी लीव्स अटैच्ड होंगी तो तुम उसको ऑब्जर्व करोगे अब की बार कि वो हमेशा एक पॉइंट से 2 लीव्स निकल रही होती हैं। ओके, इफ यू हैव ऑब्जर्व्ड इट ऑलरेडी, वेरी गुड। अगर नहीं किया है तो अब जब अमरूद खाओगे तो ऑब्जर्व करना, अगर उसमें लीव्स लगी होंगी तो एक पॉइंट से 2 लीव्स निकल रही होंगी ऑन दी ऑपोजिट साइड। तो इसका एग्जाम्पल है गुआवा। ठीक है, अच्छा अब तीसरे पे आ जाते हैं, वर्ल्ड। अब देखो फ्लावर का जब स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग कहते हैं उसके 4 वर्ल्स हैं, तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। हम लोग कहते हैं उसके 4 वर्ल्स हैं। वर्ल्स का क्या मतलब होता है कि वो रेडियली अरेंज्ड है। सिमिलरली यहाँ पर भी जो लीव्स हैं वो एक्चुअली रेडियली अरेंज्ड है, मतलब एक पॉइंट से अगर हम लोग बात करें तो एक ही पॉइंट से निकल रही हैं 2 से ज़्यादा लीव्स, यानी कि एक नोड से 2 से ज़्यादा लीव्स जब निकलती हैं तो उसको कहते हैं वर्ल्ड अरेंजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं मोर देन 2 लीव्स प्रति नोड, पर नोड। ठीक है, अच्छा ये भी प्लांट्स तुमने ऑब्जर्व किए होंगे, बस ये है कि अभी तक तुम लोग फाइलोटैक्सी नहीं जानते थे। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है एलिस्टोनिया, राइट। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। अरेंजमेंट ऑफ लीव्स किसी भी एक तरीके की हो सकती है। अब देखो तुम्हारे अराउंड बहुत सारे प्लांट्स हैं, राइट, यू कैन ऑब्जर्व ऑल ऑफ देम और उसमें तुम लोग इनकी अरेंजमेंट बता सकते हो। अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग अरेंजमेंट मिलेगी, तुमको अपने नेचर के बारे में भी पता चलेगा और आसानी भी होगी इसको याद करने में। ठीक है, तो अब तुम्हारा काम है ये जो हम सब पढ़ रहे हैं ना लीव्स के बारे में, ये तुम असल लीव्स में जाकर देखोगे। ठीक है, ओके, नाउ वी कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस सेगमेंट विच इज मॉडिफिकेशन ऑफ द लीफ। अच्छा देखो, मॉडिफिकेशन की जब भी हम लोगों ने बात करी तो हम लोगों ने बात करी जो मेन फंक्शन है लीफ का, या जो मेन फंक्शन है किसी प्लांट पार्ट का, उसके अतिरिक्त कोई फंक्शन अगर परफॉर्म कर रहा है तो उसके लिए उसको अपना फॉर्म मॉडिफाई करना पड़ेगा, उसको कुछ फॉर्म में चेंज लाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर में चेंज लाना पड़ेगा। तो सिमिलरली मॉडिफिकेशन जब लीफ का होता है तो लीफ को अपने थोड़े स्ट्रक्चर में चेंज लाना पड़ता है। ठीक है, अब हम लोग जब मॉडिफिकेशन की बात करेंगे तो हम लोग 4 टाइप के मॉडिफिकेशन की यहाँ पे बात करेंगे। तो पहला हो जाता है टेंड्रिल्स। लीफ जब टेंड्रिल्स बना देती है, टेंड्रिल्स अच्छा तुमने स्टेम में भी पढ़ा है। अब तुम लोग यू मस्ट बी वंडरिंग कि लीफ वाले टेंड्रिल्स हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, स्टेम वाले कैसे करेंगे। तो देखो जो लीफ वाले टेंड्रिल्स होंगे वो कहाँ से अराइज करेंगे, ओरिजिनेट कहाँ से करेंगे, नोड से। ठीक, स्टेम वाले जो टेंड्रिल होंगे वो कहाँ से ओरिजिनेट करेंगे, एक्सिलरी बड से। ठीक है, तो सिंपल सा तरीका है, द टेंड्रिल्स विच ओरिजिनेट फ्रॉम द नोड आर द मॉडिफाइड लीव्स। इनका काम क्या है,
टेंड्रिल्स जो होते हैं वो सपोर्ट के लिए होते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर भी जो टेंड्रिल्स बनेंगे दीज आर फॉर सपोर्ट, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है, हेल्प करेंगे क्लाइंब वगैरह करने में। अगर कोई रोप वगैरह लगा देते हो, वाइन्स में देखा होगा तुमने, पीज में, ठीक है, एग्जाम्पल भी लिख लो, पी प्लांट में देखा होगा, ठीक है। तो अगर रस्सियाँ वस्सियाँ लगा देते हो या ब्रांच लगा देते हो तो जो लीफ टेंड्रिल्स होते हैं वो उनमें चिपक चिपक के या घूम घूम के उन्हीं पे सपोर्ट लेकर द प्लांट ग्रोज अपवर्ड्स, ठीक है। तो पहला मॉडिफिकेशन जो हम लोगों ने पढ़ा वो हो गया टेंड्रिल्स, ठीक। अब दूसरे पे आ जाओ, स्पाइंस। अब फिर तुम बोलोगे कि स्पाइंस तो स्टेम में भी पढ़ा था, उसका भी मॉडिफिकेशन स्पाइंस में हो रहा था, इसमें क्या डिफरेंस है? तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो लीव्स हैं वो पूरी स्पाइंस बनाए ले रही हैं, तो कोई लीफ नहीं दिखेगी, स्पाइंस ही दिखेंगे। किस में दिखते हैं? कैक्टस में दिखते हैं। तभी हम लोगों ने वहाँ पे बात की थी कि कैक्टस यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि कैक्टस स्पाइनी लीव्स का एग्जाम्पल है, ठीक। इसमें जितनी भी लीव्स होंगी वो स्पाइंस में बदल जाएंगी। तो स्पाइंस का बेसिकली काम क्या है? यहाँ पे जो स्पाइन, जो लीव्स स्पाइन में बदल गई हैं, पहला तो वैसे ही है जैसे स्टेम का था, प्रोटेक्शन, ठीक, प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रेडेटर्स, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो खा सकते हैं प्लांट को, तो वो। बाकी जो इधर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अब जैसे कैक्टस का एग्जाम्पल ले लो, कैक्टस ऐसे एनवायरनमेंट में ग्रो करता है जहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होने लगे, बहुत ज़्यादा वाटर लॉस होने लगे थ्रू द लीव्स, तो गड़बड़ हो सकती है, isn't it? तो इसलिए उसकी जो लीव्स होती हैं वो स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाती हैं ताकि ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे टू ऑल्सो रिड्यूस ट्रांसपिरेशन, एग्जाम्पल ऑलरेडी बोल दिया है, कैक्टस, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद तीसरा टाइप का जो मॉडिफिकेशन हम लोग देखते हैं लीव्स में वो होता है फ्लैशी लीव्स। अच्छा, जब लीव्स फ्लैशी होंगी तो जैसे जब कोई प्लांट पार्ट फ्लैशी टाइप का होता है उसमें कुछ ना कुछ होता है स्टोर्ड, ठीक है। तो इनका अगर फंक्शन की बात करें तो वो हो जाएगा स्टोरेज, ठीक। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। अब देखो, तुमने फ्लैशी लीव्स जब बोला तो अब यू मस्ट बी वंडरिंग कि किस चीज़ में फ्लैशी लीव्स देखी हैं। तो भाई गार्लिक ले लो, अनियन ले लो, दोनों में ही जो बल्ब होता है इट इज सराउंडेड बाय फ्लैशी लीव्स, और एक्चुअली वही वेजिटेबल पार्ट होता है या एडिबल पार्ट होता है फ्रूट का, या हम लोग बोल सकते हैं प्लांट का, क्योंकि उसमें मत कंफ्यूज हो, जो वेजिटेबल एक्चुअली होता है वो एडिबल पार्ट किसी भी चीज़ का हो सकता है। हम लोग रूट वेजिटेबल की बात कर सकते हैं, हम लोग स्टेम वेजिटेबल की बात कर सकते हैं, हम लोग लीफ वेजिटेबल की बात कर सकते हैं। फ्रूट स्पेसिफिकली ओवरी से बना होता है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस ऑल्सो बिटवीन वेजिटेबल एंड फ्रूट। वेजिटेबल कोई भी एडिबल पार्ट है, ठीक है। अगर हम लोग ब्रॉड टर्म्स में बात करते हैं तो वेजिटेबल हम लोग रूट से भी हो सकता है ओरिजिनेट, स्टेम से भी, लीफ से भी, ठीक। फ्रूट की जब बात करते हैं वो स्पेसिफिकली ओरिजिनेट होता है फ्रॉम द ओवरी ऑफ द फ्लावर, ठीक। तो ये मेन डिफरेंस है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो फ्लैशी लीव्स हैं वो एक्चुअली वेजिटेबल लीव्स हैं या लीफी वेजिटेबल्स हैं, और इनके एग्जाम्पल्स हैं गार्लिक एंड अनियन, ठीक है। समझ में आ गया फ्लैशी लीव्स के बारे में। अच्छा, अब चौथी टाइप की मॉडिफिकेशन पढ़ लेते हैं। मॉडिफिकेशन है इन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स लाइक पिचर एंड वीनस फ्लाई ट्रैप। अब यहाँ पे क्या होता है, जो लीव्स होती हैं वो मॉडिफाई हो जाती हैं सो दैट दे कैन ट्रैप इंसेक्ट्स। कैसे मॉडिफाई होती हैं? देखो, पिचर की अगर बात करें तो इसकी जो लीफ होती है ना वो एक जग टाइप का बना लेती है, एक पिचर टाइप का बना लेती है ऐसे, ठीक। और ये जो पिचर होता है ये कवर्ड हो जाता है एक लिड टाइप के स्ट्रक्चर से। जैसे ही इंसेक्ट आके बैठता है ये लिड हो जाती है क्लोज। इनसाइड द पिचर देयर आर हेयर जो कि इंसेक्ट को पकड़ लेते हैं, इंटैंगल कर लेते हैं, और फिर यहाँ अंदर डाइजेशन होने लगता है इंसेक्ट का।
खैर वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे जो लीफ है वो मॉडिफाई हो गई है इनटू अ पिक्चर शेप स्ट्रक्चर या जग शेप स्ट्रक्चर, सो दैट द प्लांट कैन कैरी आउट इट्स फंक्शन ऑफ कैप्चरिंग द इंसेक्ट्स। ठीक है, तो पिक्चर टाइप की लीफ हम लोगों को मिल जाती है, इसका फंक्शन है टू कैप्चर इंसेक्ट्स। ठीक है, एंड स्पेसिफिकली इन व्हाट प्लांट्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बहुत सारे एग्जाम्पल्स तुम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, एक दो एग्जाम्पल्स दे दो जल्दी से। वीनस फ्लाईट्रैप लिख लेते हैं और पिक्चर प्लांट लिख लेते हैं क्योंकि उससे तुम्हें ये मॉडिफिकेशन भी याद रहेगा। सो पिक्चर प्लांट। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बात कर ली सम ऑफ द मॉडिफिकेशंस ऑफ लीफ विच आर फाउंड। मॉडिफिकेशंस में अपार्ट फ्रॉम फोटोसिंथेसिस कोई और फंक्शन यहाँ पे लीफ परफॉर्म कर रही होगी, लाइक फॉर एग्जांपल सपोर्ट या प्रोटेक्शन, या फिर ट्रांसपिरेशन रिड्यूस कर रही है, स्टोरेज कर रही है, या फिर इंसेक्ट्स को कैप्चर करने के लिए एक टाइप का पिक्चर या जग बना रही है। ठीक है, मॉडिफिकेशन क्लियर है। आई होप दिस इंटायर लेक्चर इज क्लियर टू यू अबाउट द लीव्स। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इफ यू आर आस्क्ड एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग द मॉर्फोलॉजी ऑफ द leaf. We'll meet in the next segment wherein we'll discuss about the flower morphology. Is that clear? Till then, revise this and stay tuned for the next lecture.